Good morning, students. Welcome to Pashwa International School online classes. Class 12th. Today we will study about population density. What do you mean by population density and what are the types of population density? The density of the population is good with the number of people residing in a state and the ratio of territories to the region. Population density का मतलब वो होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितने पीपल्स रह रहे हैं, उसकी आसपास की स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है रीजन की. द डेंसिटी इज a main basis of estimating the advancement and the future development of this region. कि मेन डेंसिटी से ही पता चलता है कि उसमें हम लोग कितने पीपल्स एस्टिमेट कर सकते हैं, कितने पीपल्स उसमें रह सकते हैं रीजन में. The quantity of unnatural resources such as area, soil, minerals, aquatic resources, forest resources, etc. are limited in each state. कि जो aquatic quantity of the unnatural resources है, जैसे कि area है, soil है, minerals है, कुछ भी resources है, forest है, वो unlimited limited होती है कुछ particular states के अंदर. How many human use those resources? वो उस area के अंदर कितने human यूज़ कर सकते हैं उस रिसोर्सेज को. दैट इज हाउ मैनी पीपल्स आर बेस्ड ऑन दोज रिसोर्सेज फॉर देयर लाइफ टाइम. दिस फैक्ट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ दैट पॉपुलेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड द कल्चरल डेवलपमेंट. Therefore, the sense of concentration of the population of that region is very important for the economic advancement of each and the social and cultural advancement. इसीलिए बहुत ही important होता है to measure the population density of that region. What are the types of population density? To study various aspects of population density is created as the main basic. Population density can also be several types. बहुत सी प्रकार के इसके types होते हैं density के. Each aspect is useful in analyzing the population in its own way. वो अपने ही तरीके से बहुत सारे इसमें types है इसके. So their brief information is as follows. मैथमेटिकल डेंसिटी के अंदर क्या होता है? इन विच ह्यूमन लेवल्स रेशियोज आर कंसिडर्ड. इट इज नोन बाय द फॉलोइंग फार्मूला. पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. इसमें ह्यूमन लेवल रेशियोज को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से. Economic density, the formula for determining the number of people who are in the state's production capacity and the number of people residing in that state as follows. कि economic density में ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस स्टेट में कितनी स्टेट प्रोडक्शन कितना है और उसमें अवेलेबल रिसोर्सेज कितना है. पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रिसोर्सेज. Then working density or agriculture density in which the entire population of the land being cultivated and inhabited by the population is considered. कि वहाँ की पॉपुलेशन कितना है और वहाँ का एग्रीकल्चर डेंसिटी कितना है, वहाँ का एरिया कितना है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहीं से उसकी वर्किंग कैपेसिटी डेंसिटी मिलती है. तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चर लैंड एरिया. Then agriculture density in which the area of a land which is to be cultivated and the farming public are considered. It is note that not only the population of the entire population of the state but also the population enhanced in agriculture is based. That is the total agriculture population upon एग्रीकल्चर लैंड एरिया. तो उसमें कल्टीवेट करने वाले कितने एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है एंड डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चर लैंड एरिया. Nutrition density in which the area of food grains of the agriculture and all the populations of that regions are considered. Area of a population about food crops. कि वहाँ का एरिया कितना है पॉपुलेशन का और डिवाइडेड बाय वहाँ का फूड क्रॉप्स से. Each type of population density is used to meet different objectives. कि अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के लिए तरह तरह के डेंसिटी के फॉर्मूलों को यूज़ किया जाता है. इन ज्योग्राफी मैथमेटिकल डेंसिटी इज़ यूज इन द एब्यूडेंट मतलब बहुत ही मोस्टली मैथमेटिकल
डेंसिटी फार्मूला ही यूज़ होता है. इट इज़ कॉमनली नोन एज पीपल्स लिविंग इन द स्क्वायर पर किलोमीटर्स. पॉपुलेशन डेंसिटी, population area. For example, the area is 100 square kilometer and the population is 1,50,000. then the population density कैसे निकालेंगे? तो 1,50,000 is divided by 100 किलोमीटर, देन निकल जाएगा 1,500 पर्सन पर किलोमीटर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड. कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पॉपुलेशन को. एंड द एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड एरिया, कोई एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड एरियाज है, कुछ एरियाज ऑफ ए मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, रीजन्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया विद द लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑफन अनहैबिटेड एरियाज ऑफ द डेंसिटी. कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है डेंसिटी को वो कैसे कैसे डिवाइडेड किया है. तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनको पर्टिकुलर उनके एरियाज़ वाइज डिवाइडेड किया गया है कि कहाँ पे कोई एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड है, कहीं पे एरियाज़ कहाँ, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, अफ्रीका में थोड़ा कम है ड्यू टू द इट्स क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट्स. Extreme populated area in the world, their population density is found more than 250 peoples per kilometers. Peoples come from the area of high population density. और वो areas कौन कौन से है? Eastern, Southern and South East Asia, Western and the Central Europe, East North America. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन दिस एरियाज. नॉर्थ ईस्ट इन एरियाज में बहुत ज़्यादा एरियाज में पॉपुलेशन है. एरियाज ऑफ मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, सच एरियाज ऑफ द मोर वर्ल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज, जहाँ पे कितनी डेंसिटी है? 100 to 250 किलोमीटर्स. और वो एरियाज कौन सा है? साउथ ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, कोस्टल पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, कोस्टल पार्ट ऑफ द अफ्रीका, इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, सेंट्रल इंडिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा फॉल्स इन दिस कैटेगरी. तो एरिया ऑफ मोर पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर इंडिया भी, सेंट्रल इंडिया इन्वॉल्व है. रीजन ऑफ द जनरल पॉपुलेशंस डेंसिटी, दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर द डेंसिटी कितनी है? 10 to 100 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर विद लेस देन द पॉपुलेशन डेंसिटी. और जो एरिया है वो कौन सा है? ग्रासलैंड ऑफ द एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका आर इंक्लूड इन दिस एरिया. दैट एरिया विद द लो पॉपुलेशन, कहाँ पे जो लो पॉपुलेशन, जहाँ पे 1 to 10 पीपल्स पर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, लाइक सूडान, अफ्रीका, लीबिया, मलेशिया, कनाडा इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ इन द अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडर्स इन द साउथ अमेरिका, वेस्टर्न साइबेरिया इन द एशिया, बोर्नियो, गुल्फ कंट्रीज हैव लेस मास, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है. ऑफन अनहैबिटेड एरियाज, एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर मास डेंसिटी इज लेस देन 1 person पर किलोमीटर. ऐसा भी एरिया है जहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 1 person ही रहता है. 70% of the land area of the earth is occupied by the area which is kept under this category. The world oversaw territories extreme heat and the light mountain regions are often, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी एरियाज होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम वहाँ का हीट टेम्परेचर रहता है, एक्सेट्राज.